السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ بھائی آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اور ناولس بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پلیز اب یار اپنی بہن کو بہت زیادہ 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 سپورٹ کرو، آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ آپ میں سے کوئی بھی لائک نہیں کرتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لائک کر کے جاتے ہیں، ورنہ ویڈیو پہ 1-2 لائک بس اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو پلیز پلیز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ دیکھیں، آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ دوڑتے دوڑتے اسے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، اب اس کے زخم اور زیادہ رسنے لگے تھے، درد کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ پھر وہ دھڑام کی آواز سے زمین پر گر گئی۔ آنکھ کھلی تو وہ ارد گرد غور سے دیکھنے لگی، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جگہ کیسے ہے، اور کمرے پر غور کیا تو پتہ چلا یہ کسی ہسپتال کا وارڈ ہے۔ اور سامنے کوئی نرس تھی جو بیٹھے بیٹھے ہی سو رہی تھی، ٹرپ ختم ہو چکی تھی جسے اس نے خود ہی اتار دیا، اب تو یہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سے اٹھی اور نرس کی طرف بڑھ گئی۔ سنے نرس کو آواز دیجیے، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کون لے کے آیا ہے؟ آہستہ سے سوال کیا گیا۔ آپ سول ہسپتال ساہیوال میں ہیں اور کوئی چھوڑ کے آپ کو چلا گیا ہے؟ نرس کا رویہ کافی اچھا تھا اور دوستانہ بھی۔ ساہیوال کیسے آ گئی تھی وہ، اور وہاں سے کیسے بچی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا؟ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کی فیس اور دوائی کا خرچ، اس نے فکر مندی سے کہا تو وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ آپ فکر نہ کریں، یہ گورنمنٹ ہسپتال ہے، آپ جا کے آرام کریں، آپ کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اب آپ کی حالت خراب ہے۔ وہ واپس مڑی اور آ کر دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دماغ زور زور سے اس کے گنہگار ہونے کا الارم بجا رہا تھا، جبکہ دل پھٹ جانے کو تیار تھا۔ کب وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی پتہ نہیں چلا۔ او بے، تجھے ساری زندگی تمیز نہیں آ سکتی؟ لکھوا لے مجھ سے، سیما نے کہا۔ تمیز سیکھنا کون چاہتا ہے بے دھڑک جواب دیا گیا تھا۔ مجھے تو تمیز سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں کوئی مانگ لے تو اسے ضرور دے دوں گی، پہلے خود کو تو سیکھ لے جا کر، پھر دے بھی لینا دوسروں کو۔ ایک تجھے چھوڑ کر باقی سارا جگ کہتا ہے کہ بجلی جیسا کوئی نہیں۔ ہاں یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ تیرے جیسا کوئی بھوڑ اور بدتمیز اس جگ میں نہیں۔ ہاں کہکا لگا کر وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھ، سیما نے بیزاری سے کہا۔ کیا تو شروع سے ہی ایسی ہے آدم بازار؟ میرا ابا تو ایسا نہیں ہے، پھر وہ تیرے ساتھ کیسے گزارا کرتا ہے؟ پھٹے منہ تیرا، کہ کہہ کر سیما نے جوتی اٹھا کر بلی کی کمر پر دے ماری۔ وہ جو بھاگ رہی تھی جوتا کھا کر تلدما گئی۔ بے کا حوصلہ ہے ویسے وہ تجھے برداشت کرتا ہے۔ بے کا حوصلہ ہے ویسے جو تجھے برداشت کرتا ہے۔ دفعہ ہو جا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ جا رہی ہوں، میں خود بھی یہاں رہ کر خود کو ذلیل کروانا نہیں چاہتی، پانو کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی باہر نکل گئی اور سیما مسکرا کر رہ گئی۔ پتر بلا بندوں کو بلاؤ، اللہ کا نام لے کر شروع کرو کٹائی۔ جلال اپنے بیٹے کمال سے مخاطب ہوا۔ ابا جی جو حکم آپ کا، کل ہی کام شروع کروا دیتا ہوں۔ ہاں پتر، مزید دیر کرنا ٹھیک نہیں، بدل بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جلدی کٹائی کرا۔ گامے جی ملک جی، گامے بندوں کو بلواس بھیج دے، کل سرگی پہنچ جائیں زمین پر۔ جی ملک جی، جو آپ کا حکم، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جی نہیں ہوگی دیر، انہوں نے ابھی کبھی بلاوا بھیج دیتا ہوں، آؤ اور جا کا گنم کر۔ ملک جی میری بیٹی بے قصور ہے، رحم کریں، ہم غریب و لاچار ہیں، آپ کا ہی آسرا ہے، وہ عزت لوٹ چکے میری۔ یہ کہہ کر لطیفہ زور زور سے رونے لگا۔ حوصلہ کر لطیفے، تیری بیٹی کے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اگر وہ زبردستی لے کر گئے ہیں تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اگر تیری بیٹی خود گئی ہے تو پھر بتا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ جو فیصلہ آپ کریں مجھے قبول ہوگا ملک جی۔ سوچ لطیفے، گھر جا کر صلاح مشورہ کر اپنی گھر والی سے، عصر کے بعد حاضر ہو جائیں۔ جو حکم مالک جی، رب آپ کو حیاتی دے۔ لطیفہ دعائیں دیتا مڑ گیا۔ ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھ۔ جو لڑکیاں خود گھر سے بھاگ جاتی ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا سزا دیتے ہیں؟ میرا بچہ، جو لڑکیاں ماں باپ کی طرح لانگ جاتی ہیں وہ کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہیں، لوگ انہیں اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، نوچ نوچ کر ان کا گوشت کھاتے ہیں اور پھر ان کو لذیذ گوشت کی طرح دوسروں کے آگے بھی پھینکتے ہیں۔ پتہ نہیں تو کیا کہہ جا رہی ہے، میری تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ بلی، میری جان سے پیاری بیٹی، کبھی کسی کا اعتماد نہ کرنا اور نہ اس دنیا میں
کوئی تمہیں تمہارے ویرے اور ابے سے زیادہ پیار کر سکتا ہے؟ بیبے تو بات کو پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتی ہے، بھلا مجھے کیوں کوئی پیار کرنے لگا؟ میں بلی ہوں، منہ نوچ لوں گی۔ چھوڑ ساری باتیں اور جلدی کر منہ کو بلا، 50 لوگوں کا کھانا تیار کرنا ہے۔ عصر کے بعد ڈیرے پر پنچایت ہے۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹ کر اسے آج ابے کی ساری باتیں سمجھ آ گئی تھیں اور کچھ آنسو بہہ کر گال بھگو گئے تھے، اور کاش بیبے کی بات کو مذاق نہ سمجھا ہوتا۔ کمال پتر، بھلا مولوی صاحب کو آ کر بسم اللہ کریں۔ ملک بلال، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ قبول، مبارک مبارک ہو گیا جی، نکاح آ گیا سکون۔ کاش یہ لڑکی تیرا اصل روپ جانتی ہوتی تو کبھی تیرا انتخاب نہ کرتی، لیکن شادی یہ بھی تیرے ہی جیسی ہے۔ ملک جلال سوچ کر رہ گیا۔ بھائی جی، آپ کو اللہ سونے کا واسطہ میرا گھر بچا لیں۔ کیا بات ہے پلوی شاہ، وہ مجھے اور میری بچیوں کو مار دے گا۔ ادھر آؤ پلوی شاہ، آرام سے بیٹھ کر بتاؤ کیا بات ہے اور کیا ہوا ہے؟ بھائی جی، وہی ضد ہے، اور کیا ہوگی بیٹا، اور دوسری شادی؟ میں بات کرتا ہوں اس سے، تم پریشان نہ ہو، وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں ساتھ۔ ملک جلال بڑا بھائی اور ملک بلال چھوٹا بھائی ہے۔ کمال اور نازو ملک جلال کی اولاد ہیں، جبکہ ملک بلال کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے کی خواہش نے اسے پاگل کر دیا تھا، وہ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگا تھا اور پلوشا کو بھی بہت مارتا تھا۔ دوسری شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا اور ہر صورت دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اب جلال کے کہنے پر ہی وہ دوبارہ بیٹا ہونے کے آس لگائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کا دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ بیٹا ہوگا۔ وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی اور آج بھی حسب معمول اس نے اسے مارا تھا۔ طبیعت انتہائی خراب ہو گئی تھی تو وہ دوڑتا ہوا جلال کے گھر گیا اور سیما کو دائی بلانے کا بولا۔ وہ دوڑتی ہوئی پلوشا کے پاس گئی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ دائی نے شہر بڑے ہسپتال لے جانے کا بول دیا تھا، پر وہ نہیں مانا۔ ادھر ہی کرو جو کرنا ہے، اس نے کون سا بیٹا دینا ہے مجھے؟ سیما دوڑتی ہوئی گئی اور جلال کو بلایا۔ وہ اسے لے کر فوراً شہر کی طرف نکل گیا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے اس نے 2 گھنٹے لگنے تھے اور ان 2 گھنٹوں میں پلوشا کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا اور حالت نازک بتائی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد نرس باہر آئی، بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو، ماشاءاللہ، سب نے ایک ساتھ بولا تھا۔ اور پلوشا کیسی ہے؟ جلال نے پوچھا۔ بھائی جی ٹھیک ہوگی، بلال بولا تھا۔ نہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، نرس نے کہا۔ واپس مڑ گئی۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا اور پھر ایک کوہرام مچ گیا۔ بلال نے فقر رنگ سے جلال کی طرف دیکھا۔ جلال نے بلال کو گلے سے پکڑا اور چلا کر بولا، خوشیاں منانے کا وقت ہے تیرا، جا دفعہ ہو اور جا کر شامیانے بجا، ڈھول پیٹ۔ پھر وہ رو دیا تھا۔ پلوشا تیرے نصیب، مجھے معاف کر دینا میری دھی، میں ہار گیا۔ وہ شدت سے رو رہا تھا۔ پلوشا کو وہی بے عقل آیا تھا اور اسی نے سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کا چھوٹا بھائی اس قدر برا اور گھٹیا ہوگا، ورنہ وہ کبھی پلوشا کو زندگی تباہ نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دینا پلوشا، مجھے معاف کر دینا باجی۔ اشار دوڑتی ہوئی اور بلی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باجی، میری امی کب واپس آئیں گی اور ہمیں واپس لے کر جائیں گی؟ اب تو منا بھائی بھی آ گیا ہے، پر امی کیوں نہیں آتی؟ مجھے گھر جانا ہے، امی کے پاس اور منّے کے پاس۔ مشال بھی پاس ہی بیٹھی تھی اور بلی کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی کہ شاید آج وہ یہ کہہ دے کہ پلوشا آ گئی ہے۔ باجی بولو نا، عائشہ بھی بولی تھی۔ ہمنا نے بلی کی طرف دیکھا اور پھر بولی، امی اب کبھی واپس نہیں آئیں گی، اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ بلی نے ان سب کو گلے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر سیما کمرے میں داخل ہوئی۔ سیما نے آ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا، بولی کہ اب میں ہوں تم سب کی ماں، بلی کی طرح تم سب بھی اب میری بیٹیاں ہو، اب نہیں رونا، اچھا اب چپ میری شہزادیاں۔ پھر وہ آنسو چھپاتی باہر نکل گئی۔ ملک جلال نے آواز لگائی، عائشہ، ہمنا، اشال، مشال، آؤ ادھر، آؤ پتر، یہ دیکھو پتر کیا لے کر آئے ہیں تایا جی؟ ہمنا نے پوچھا۔ ابا جی، آج سے ابا جی ہوں پتر، ملک جلال نے بڑے پیار سے کہا۔ پر تایا جی، ابا جی تو، مشال بولی تھی، مر گیا ہے وہ بھی تم لوگوں کی ماں کے ساتھ ہی، کچھ نہیں لگتا وہ اب، ملک جلال غصے سے بولا۔ اب یہ گھر تم لوگوں کا ہے اور ہم تمہارے ماں اور ابا ہیں، بڑا پیار کرا بھرا لہجہ تھا۔ اب بولو ابا جی۔ اچھا ابا جی، سب نے ایک ساتھ بولا تھا۔ یہ لو اور جا کر دیکھ لو۔ جلال نے ایک پیکٹ انہیں دیتے ہوئے کہا تھا۔ جلال بچیوں کے لیے کپڑے، جوتے اور کھلونے لے کر آیا تھا اور ساتھ کتابیں بھی لے کر آیا تھا۔ کل سے ان کو اسکول بھیجا کر سیما کو تعید کرتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ بلی دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور دل میں ہلکی سی جلن بھی ہوئی تھی کہ آج پہلی بار ابا جی نے اسے آواز دینی تو دور اس کا پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ آنسی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اٹھ کھڑا ہو اور نکل ادھر سے۔ نہیں، میں ایسے کبھی نہیں جاؤں گا، بلال غصے سے بولا۔
آپ کو میری بات ماننی پڑے گی اور ہر صورت میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ بول اب کیا کرے گا تو؟ میری اوقات کیا ہے اور تو کر کیا سکتا ہے؟ جلال بھڑک اٹھا تھا۔ میں اپنی بیٹیاں لے جاؤں گا، بلال نے تنکا جواب دیا۔ تیری یہ اوقات اور تیری یہ مجال، تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ ہاتھ لگا کر دکھا مجھے بھائی جی، مجھے مجبور نہ کریں، میرا ساتھ دیں۔ عثمان کو نہیں سنبھال سکتا اب میں، مجبور ہو گیا ہوں۔ اب وہ روان سا ہو گیا تھا۔ جلال نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گیا۔ تو رو رہا ہے؟ جلال حیران ہو گیا۔ غصہ بھول کر اس نے بلال کو گلے سے لگا لیا اور وہ بلک بلک کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ بھائی جی مجھے معاف کر دیں، میری غلطی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا، وہ نیک وقت ٹھیک تھی۔ میں نے رب کی رحمت اور نعمت سے انکار کر دیا تھا، اس کی سزا مل گئی مجھے۔ ٹھیک ہے بھائی جی، میں بچیاں نہیں مانگتا، پر میری بات مان لیں۔ وقفہ ہوا تھا۔ طویل وقفے کے بعد، ٹھیک ہے، کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے ڈیرے پر، اس کے بعد جو فیصلہ میں کروں گا تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ جی جی قبول ہوگا مجھے آپ کا ہر فیصلہ، تیاری کر چل جا کہ اوکے۔ او کمال پتر، کل سن، بیبے کو بتا کل 50 لوگوں کا کھانا تیار کرنا ہے۔ عصر کے بعد اپنی بیبے کو بھی بتا دے جا کر۔ اچھا ابا جی کہہ کر کمال گھر کی طرف چل دیا۔ نکاح کے بعد ملک جلال اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، آج کے بعد میرا ملک جلال سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے اب صرف اس گاؤں کا سرپرست ہونے کی وجہ سے ملوں گا۔ بھائی جی ہونے کی حیثیت سے نہیں؟ بلال نے حیران ہو کر ملک جلال کی طرف دیکھا۔ اپنی چاروں بچیاں مجھے قانونی طور پر دے چکا ہے اور اس کے بدلے یہ نکاح کیا گیا ہے، قانونی کاغذ یہ ہے، سب دیکھ سکتے ہیں۔ بلال نے سر ہلا کر ہاں بولا اور پھر ملک جلال سب سے گویا ہوا۔ اور اب جبکہ ملک جلال چھوٹا بھائی تھا میرا اور اس سے اپنی مرضی سے غیر خاندان میں شادی کی، تو اس سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے یہ ہمارے لیے مر گیا اور ہم اس کے لیے۔ پر بھائی جی، بلال نے بولنا چاہا۔ خاموش، جلال نے جھڑکا اور پھر سے بات شروع کی۔ میں نے اسے اس کا حصہ دے دیا ہے 20%، باقی اس کے بیٹے اور بچیوں کا حصہ ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے نام منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر ملک بلال مجھ سے کوئی بھی تعلق رکھنا چاہتا ہے تو اس غیر خاندان کی عورت کو طلاق دینا ہوگی، ابھی اور اسی وقت۔ بھائی جی میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، بلال بولا تھا۔ پھر تم اپنی بیوی کو لو اور شہر والے گھر چلے جاؤ، مزید مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ملک جلال نے فیصلہ سنایا۔ ملک بلال نے اس وقت یہاں سے چلنے میں ہی عقل مندی سمجھی اور اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد گامے جی ملک جی، او بلا او ساتھ والی پنڈ والی کو لڑکی ساتھ لائے ہیں؟ جی ملک جی لائے ہیں، تو بلا ان کو۔ جو حکم ملک جی۔ طیفہ سر جھکائے کھڑا تھا اور دوسرے گاؤں کا چودھری سجاول اپنے بندوں بیٹے اور طیفے کی بیٹی کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ بولو طیفے، اپنا مدعا بتا، گامے نے اونچی آواز میں کہا۔ چودھری سجاول کا بیٹا میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا، اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا اور میں جیتے جی مر گیا ہوں۔ اوپر سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی خود بھاگی ہے۔ ملک جی میری بیٹی خود نہیں گئی، ان لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہے۔ جی چودھری سجاول، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ملک جلال روبدار آواز میں بولا۔ ملک جی، یہ لڑکی خود بھاگ کر میرے بیٹے مدثر کے پاس آئی تھی اور اس سے نکاح کرنے کو کہا تھا۔ مدثر میرے پاس آیا، ساری بات بتائی اور اجازت مانگی۔ میں نے اس لڑکی کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو نکاح کی اجازت دے دی۔ کیوں؟ اور مدثر چودھری نے وضاحت طلب کی۔ جی چودھری جی ایسا ہی ہوا۔ اوہ ٹھیک چودھری جی، ملک جلال بولا اور پھر نوری سامنے آؤ۔ ملک جلال نے حکم دیا۔ جی ملک جی، نوری ڈرتے ڈرتے بولی۔ تو بتا، تو خود گئی تھی اور نکاح کر لیا ہے یا یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لے گئے تھے؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں یہاں، کوئی تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ نوری کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی چودھری سجاول کے بیٹے کی طرف۔ بول نوری، جلال نے نرمی سے کہا تو وہ چیخ کر رونے لگی اور ہکلاتے ہوئے بولی، ملک جی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میری عزت تار تار کر دی اور پھر زبردستی میرا نکاح اس بغیرت سے کروا دیا۔ بکواس بند کر لڑکی، چودھری سجاول دھارا۔ آرام سے چودھری سجاول، یہ ملک جلال کھڑے رہے اور یہاں اونچی بولنے کی اجازت سے ملک جلال کو ہے۔ پنچایت کے باقی لوگ بھی وہاں ہاں میں بولے پڑے۔ لڑکی، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لے گئے تھے؟ نہیں ملک جی، چودھری سجاول طنزیہ مسکرایا اور بولا، جب اغوا ہوئی ہی نہیں تو ثبوت کدھر سے دے گی؟ طیفے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ملک جلال نے پوچھا۔ نہیں ملک جی، میرے پاس میرے رب کے سوا کوئی ثبوت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور نظریں جھکا لی۔ پنچایت میں اور کوئی ایسا بندہ جس نے اسے اغوا ہوتے دیکھا ہو؟ ملک جلال نے بآواز بلند کہا۔ خاموش اور گہری خاموشی ہے۔ کوئی
दोबारा आवाज़ लगाई गई, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस लड़की के हक़ में कोई गवाही देगा। इतने में बशीर जो कि तीफ़े का हमसाया था उठकर खड़ा हुआ और बोला, इस बच्ची के किरदार की गवाही मैं अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़र जान कर देता हूँ, ये पाक है और बेकसूर है। तीफ़े ने सर उठाया और तशक्कुर भरी नज़र बशीर पर डाली। जी तो तबीयत है, तो कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर उससे पूछ रही थी। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा और घर से और किधर से हो बताओ ताकि तुम्हारे घर वालों से रब्ता किया जाए। नाज़ो नाम है मेरा, उसने बड़े करब से बताया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, माँ बाप नहीं रहे, मैं गुनहगार हूँ। वो चीखने लगी, डॉक्टर मैं गुनहगार हूँ, मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दें। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो ज़रा रोने लगी। डॉक्टर ने उसे एक नज़र देखा और फिर उसे बोली, आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं डॉक्टर। डॉक्टर हमा ने कुछ देर सोचा फिर बोली, उनको डॉक्टर अदीला के वार्ड में मुंतकिल कर दें, मैं इनको फ़ोन कर देती हूँ। यस डॉक्टर, नर्स ने कहा। तीफ़े इस दिन की पूरी दास्तां सुना। अब्बा टी अब्बा रोटी ले आऊँ? नहीं पुत्र, अभी नमाज़ पढ़ने के बाद खाऊंगा। और सुन, आज चाय साथ ही बना लेना, बड़ा थक गया हूँ आज। अब्बा का खाना तैयार है, चाय भी साथ ही चढ़ाने लगी हूँ, जल्दी से नमाज़ पढ़ के आओ, दोनों मिल के साथ खाना खाएंगे। आज मैंने तेरी पसंद की भिंडियाँ बनाई हैं, नूरी ने खुशी होकर कहा। जीती रहे मेरी धी। अच्छा इधर आ, तुझे से एक ज़रूरी बात करनी है। जी अब्बा बोल। पुत्र तेरी माँ भी मैं हूँ और बाप भी, इसलिए ये बात भी मुझे ही तुझे से करनी है। अब्बा बोल, क्या बात है? नूरी ने कहा, मैं तेरी शादी अपने इमाम साहब के बेटे से करने का सोच रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है? आपका नाम? नाजू मुख्तसर जवाब। अब्बा का नाम? खामोश। नहीं याद सर, नाम है हला दिया। अच्छा, अम्मी का नाम? खामोश। वो भी नहीं याद। नहीं। अच्छा, कोई दोस्त? खामोश। प्यार से सब किस नाम से पुकारते हैं? बिल्ली। आओ आओ आओ, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्ली जैसी आंखें, नरम और नाजुक, साफ रंगत। किसने रखा है ये नाम? अब्बा जी ने। दो आंसू बहकर गाल भगो गए। डॉक्टर अदीला बड़े प्यार से बिल्ली से ये बात पूछने की कोशिश कर रही थी, वो कौन है और इसके साथ क्या हुआ है, वो यहाँ क्यों है और इसके साथ जो वाक़यात हुए उन्हें जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नर्स तमाम रिपोर्ट्स डॉक्टर लीला को देगी थी, जिसे पढ़कर उन्हें यह अंदाज़ा हो गया था कि इसके साथ क्या क्या हुआ होगा। अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। उन्होंने उसकी खामोशी तोड़ने की कोशिश की, मगर वो खामोश बस सोचों में गुम थी। बेबे अब मैं तेरी और अब्बे की कुछ नहीं लगती ना, बकवास न कर बिल्ली, खामोश हो जा। सीमा ने गुस्से से कहा। बेबे, जो जुल्म तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, इसके लिए कभी माफ़ नहीं करना मैंने। बिल्ली, तुझे रब का वास्ता, जा कोई काम कर ले जाके, वरना मेरा दिमाग फट जाना। बेबे सच सच बता दे मुझे भी, मैं भी तेरी सौतेली बेटी हूँ ना, मेरी अम्मा कोई और थी ना? बेबे बोल। तराक जूता बिल्ली के दिमाग पर पड़ा तो उसका दिमाग घूम गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और दिल में तारे नजर आने लगे। थोड़ी होश आई तो देखा कि बेबे वीर का जूता लिए उसके सर पर खड़ी है और उसे ये समझने में ज़रा देर न लगी कि थोड़ी देर पहले ही यही जूता उसके सर पर पड़ा था। बेबे, तूने मुझे मारा? जोर जोर से रोते हुए उसने पूछा। हाँ मारा है, अब अगर मज़ीद बकवास की तो दो चार और भी लगा दूंगी। बेबे, तू मेरी माँ नहीं है, तू तो माँ ही नहीं है, ही नहीं है। रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। और क्या हुआ? मेरी शेरनी जैसी बिल्ली को। अबे की आवाज़ के साथ ही बिल्ली के रोने की आवाज़ और बुलंद हो गई। मार दो मुझे, मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। जालिम लोग। ओ मेरा पुत्र, क्या हुआ है? मलक जलाल ने आते ही उसे गले से लगाया था और पूछने लगा। बेबे मारती है, आज तो हद ही कर दी। वीर का जूता मेरे सर पर मारा है, सर फट गया है मेरा। बेबे सच सच बताओ, ये मेरी सौतेली माँ है ना? ज़ुबान देखें इसकी, ज़ुबान बेच भी चलाई, कब से मुझे यही कह जा रही है, पता नहीं क्या घुस गया है इसके दिमाग में। पूछें इससे। अब्बे सच सच बता, आज मुझे मेरी माँ का नाम बता दे। अब्बे तमीज़ का बिल्ली, तमीज़। सीमा गुस्से से बोली। बिल्ली ज़ारों कतार रोते हुए पूछ रही थी। मलक जलाल ने सीमा को खामोश रहने का इशारा किया और बोला। मलक जलाल ने बड़ी संजीदगी लहजे में कहा, पुत्र अब तुझे सब पता चल गया है तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब दिल बड़ा करके सुन तेरी माँ का नाम है। बिल्ली ने हैरान होकर मलक जलाल की तरफ देखा। पापो पापो, वो मांगने वाली? बिल्ली ने चीख कर कहा। हाँ पुत्र, उसी से लिया था तुझे। साथ ही बिल्ली के रोने की आवाज़ दूसरे गाँव जाने लगी और मलक जलाल का कहका भी।
सीमा भी मुस्कुरा दी क्योंकि वो जानती थी मलक जला बिल्ली के साथ कितना प्यार करता है और वो वही लोग इधर आज के बाद मेरी बेटी को चाहे जो भी हो जूता नहीं मारना। आखिर को वो मलक जलाल की बेटी है। फिर उसने बिल्ली को गले से लगाया और चुप कराया। साथ 2,000 रुपये जुर्माना अदा किया तो वो भी मुस्कुरा दी। बेबे ने मुंह बनाकर बोला, और चढ़ा ले इसे सर पर, ये तो पहले ही मान नहीं मुझे। अबे हिम्मत है वैसे आपकी। बिल्ली ने हंसता से कहा तो मुस्कुरा दिया। आहो पुत्र। फिर वो दोनों ने कह के गूंज उठे। अब्बा मैंने पहले कभी आपको किसी बात का इनकार किया है जो अब करूँगी? नूरी ने अदब से जवाब दिया। जीते रहे पुत्र, मैं आज ही मौलवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ। कहकर वो मस्जिद की तरफ चल दी। नमाज के बाद जब वो घर पहुंचे तो उसको होश उठ गया। घर का दरवाज़ा खुला था और चाय चूल्हे से नीचे गिर रही थी। नूरी की एक चप्पल दरवाजे के करीब ही थी और दूसरी नहीं थी। घसीट कर ले जाने के निशानात थे। ये कहकर तीफा खामोश हो गया। ये धर्म से गिरने की आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा। नूरी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। इसको डिस्पेंसरी लेकर जाओ, मलक जलाल ने कहा। गामा और तीफा उसे लेकर जाने लगे तो मलक जलाल ने उसे रोक दिया। तीफे की जगह दूसरा बंदा साथ भेज दिया। सब खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। मलक जलाल की आवाज़ आई, कोई और है जो नूरी की गवाही दे? कोई भी नहीं उठा था। थोड़ी देर के बाद मुबशर बोला, मलक जी कुछ बताना है? हाँ बोलो बशीर। तीफा सच्चा है, मैंने इसकी बेटी को गवाह होते देखा था मगर कुछ कर नहीं सका। सारी बात बता बशीर अहमद। मलक जी, मैं इस दिन मगरिब के वक्त वापस घर आ रहा था। जब मुझे ज़ोर से दरवाजे खुलने की आवाज़ आई तो मैंने गौर किया तो कुछ बंदे तीफे के घर में दाखिल हो रहे थे और फिर मैं वहीं रुक कर देखने लगा। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग नूरी के हाथ और मुंह बांधे उसे गाड़ी में डाल कर ले गए। क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? जी मलक जी। बताओ कौन था वो? चौधरी सजावल का बेटा। पक्का यकीन है? जी मलक जी। अब जब ये साबित हो गया कि को मलक चौधरी सजावल बोला, सजा को छोड़ कुछ दे दिलाकर। हम इज्जत नहीं बेचते चौधरी, ना हम बेगैरत हैं ना नूरी तेरे पिंड की है। अब हमारा फैसला सुन। मलक जलाल दारा। चौधरी सजावल गुस्से से मुंह फेर कर बैठ गया। सब लोग सजा तजवीज़ करें। बोल तीफे, तुझे ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मलक सोच ले। चौधरी सजावल ने मलक जलाल को धमकी दी। चौधरी सजावल, मुझे हल्का ना ले। इंतज़ार कर पंचायत का क्या फैसला करती है। बहुत सारी सजाओं की तजवीज़ के बाद चौधरी ने सारजो को जो कल दोनों पिंड के सामने 100 कोड़े मारे जाएंगे। मलक जलाल ने फैसला सुनाया तो सब ने इस बात में सहलाया। चौधरी सजावल गुस्से से लाल पीला हो गया और दाड़ा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चौधरी सजावल खुद को काबू में रख। कमाल ने आगे बढ़कर उसे गुस्से से कहा, मलक जलाल तुझे ये दुश्मनी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। याद रखना सब लोग खाना खाएं। मलक जलाल ने कहा तो सब उस तरफ चल दिए। चौधरी सजावल के बेटे निसार को पकड़ लिया गया और नूरी के होश में आने का इंतज़ार था। मलक बिलाल अपनी नई बीवी और बेटे को लेकर शहर चला गया जबकि इसकी बेटियां जलाल के घर पर ही थी। बेली हमना से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी और उसके साथ ही रहती थी। बाद नुकने के घर भी साथ ही जाती। बिल्ली ओ बिल्ली क्या है वे कभी तो सुकून से सोने दिया कर। बिल्ली उठ जा, बेटियां इतनी देर तक नहीं सोती क्यों? उनको जिन चिमट जाते हैं। बिल्ली ने चीख कर कहा, अल्लाह करे तुझे तो कोई जिन ही चिमट जाए, मेरी तो जान छूटे। बेबे जल्दी छोड़ूंगी तेरी जान, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। अब्बाजी को तो चुड़ैल चिमट गई थी बेबे, तुझे पता नहीं चला? हाँ, कब मुझे तो तेरे अब्बे ने कभी नहीं बताया। सीमा ने हैरान होकर कहा, ओ भली लोग, मेरी क्या मजाल के मैं तुझे ये बताता कि मुझे चुड़ैल चिमट गई थी। मलक जलाल जो बिल्ली के साथ ही लेटा था बिल्ली की बात सुनते ही बोला, ना मलक जी, ये आप दोनों बाप बेटी मुझे ही तो चुड़ैल नहीं कह रहे। तौबा तौबा बेबे, जो हम तुझे ऐसा बोलने। बिल्ली मासूमियत से बोली, उठ जा बिल्ली, नहीं तो आया है जूता। उस घर में एक ही मैं तो चुड़ैल हूँ, बाकी तो फरिश्ते हैं। सीमा ने बात समझते हुए कहा तो वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। चल पुत्र उठ जा अब और नमाज पढ़ ले, वरना अब तुझे तेरे बेबे ने बाकी जूते से पीटेगी। अच्छा अब्बा जी, कहकर उठ गई। मलक जी गजब हो गया, क्या हुआ है गामे? क्यों इस तरह सुबह सुबह दौड़े लगा रहे हो? मलक जी, वजीफे की बेटी मर गई। ओहो, गलत हुआ ये तो। नहीं मलक जी, चंगा ही हुआ। अब उसे किसने कबूल करना था? चल जा, जाके तीफे को देख और उसकी मदद कर, कफन दफन का इंतजाम कर। जोहर की बाद नूरी को दफना दिया गया और तीफा हमेशा के लिए अकेला हो गया। दिन गुजरने गया। एक हफ्ते के बाद ओ तीफे, गामिक ने आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं आया। गामिक बहुत देर इंतजार करने के बाद वापस पलट गया। मलक जी, वो तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। अच्छा, पंचायत अब खुद फैसला करेगी। नूरी हमारे गाँव की इज्जत थी और चौधरी सजावल के बेटे निसार ने हमारी इज्जत आतर की और अब उसकी वजह से बच्ची मर गई तो अब सज़ा दोबारा तजवीज़ की जाए, इसको सरेआम फंदा दिया जाए।
सब ने मुड़कर देखा। ये लतीफ़े की आवाज़ थी। लतीफ़े की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। मलक जलाल ने पूछा, ना मलक जी ना, वरना मुझे फंदा दे दें। उसकी बात सुनते ही चौधरी सजावल तैश में आ गए और अपनी औकात में रह, फंदे दे दो, मैं तुझे फंदे हैं लटका दूंगा, याद रखना। चौधरी सजावल, आराम से ज़रा होश करो, कुछ मेरे ही डेरे पर बैठ कर मुझे ही तड़ियाँ ना लगाओ, पंचायत तो फैसला करेगी। सजाए मौत में आग लगा दूंगा। आकर किसी ने मेरे बेटे को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो चौधरी सजावल चीखा, प्लीज़ मुझे बताओ नाजू, आपके साथ क्या हुआ था और किसने किया है? डॉक्टर आदिला बड़े प्यार से पूछ रही थी, मगर वो खामोशी ना ही देखो नाजू, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देती मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे बताओ नाजू। बल्कि नाजू नहीं, बिल्ली। आज से तुमको बिल्ली ही कहकर पुकारते हैं। बिल्ली ने सर उठाया और उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया, फिर से वापस नीचे देखने लगी। हम डॉक्टर हम कौन हम ना, मेरी बहन इसके कब्ज़े में है। किसके? बताओ, हम उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ मुझे बताओ, मैं सब सच बताओ। बहुत ज़ालिम है और मैं गुनहगार हूँ। हाँ डॉक्टर, मैं बहुत गुनहगार हूँ। क्या गुनाह किया है तुमने? बिल्ली बताओ मुझे। डॉक्टर दिला ने उससे पूछा। मत मारो, खुदा के लिए मत मारो बिल्ली, होश करो। नर्स इंजेक्शन लेकर आई जल्दी। और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा कर सुला दिया। नहीं डॉक्टर हुमा, अभी तक सिवाय नाम के इसने कुछ नहीं पता चला। आज एक और नाम हमना भी लिया उसने, जो कि अभी तक इन लोगों की कैद में है, बट स्टिल आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड विद हिम। ओके ओके डॉक्टर, डोंट वरी, टेक सम टाइम, गुड बाय। इसके बाद डॉक्टर अदीला बड़े पैमाने पर उसके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने लगी। 4 घंटे के बाद उसको होश आया तो डॉक्टर अदीला ने बड़े मुतमईन और ठंडे लहजे में कहा, बिल्ली मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे सब बताना होगा। हमना को भी हम तभी निकाल पाएंगे जब तुम हमारी मदद करोगी। बिल्ली ने सर हाँ में हिलाया और ऐसा से बोली, डॉक्टर वो बेकसूर है, मैं गुनहगार हूँ। क्या गुनाह किया है तुमने, मुझे बताओ। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने वाला है। इस गुनाह की माफ़ी अल्लाह ताला दे देंगे कि क्या? किस गुनाह की? हमना की ज़िंदगी बर्बाद करने की। वो दरिंदे उसे भी ले गए। कौन दरिंदे? बिल्ली, तफसील से बताओ। चौधरी सजावल की बात सुनते ही सारा गाँव मशल हो गया और पत्थर उठा उठा कर उसे और उसके बंदों को मारने लगे। चौधरी सजावल तो भाग गया, मगर उसका बेटा और 2 आदमी उसके पास थे, उनको लोगों ने पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। जलाल भी लोगों का गुस्सा देखकर पीछे हट गया और उन्होंने उनको मार दिया। लाशें जब सजावल को मिली तो वो बदले की आग में जलने लगा। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि तीफे की फंदा लगी लाश उसके घर से बरामद हुई और सब ने उसे खुदकुशी ही समझा, क्योंकि तीफा नीम पागल हो गया था। फिर चंद दिन बाद ही बशीर को सांप ने काटा, वो भी मर गया। ये भी बाज़ाहिर तभी मौत ही लगी, मगर मलक जलाल को शक तो हुआ, मगर उसने ज़्यादा गहराई में जाकर पूछ नहीं की। इसके बाद कुछ गलत नहीं हुआ। सब आहिस्ता आहिस्ता से नूरी और तीफे को भूल गया, मगर वो कौन नहीं भूला? कौन नहीं भूला? चौधरी सजावल। पहला दिन बाजी बिल्ली, हमना ने आवाज़ दी। हूँ, बिल्ली ने आराम से कहा। ये लड़का रोज़ इधर ही खड़ा रहता है। कौन लड़का? हमना, वो देखो, हमना ने इशारा करते हुए बताया। खड़ा है तो खड़ा है, हमें इससे क्या, तुम सीधा चलो। बाजी चुप और आराम से बोली। अच्छा बाजी। दूसरा दिन। बाजी बिल्ली, वो आज भी इधर ही खड़ा आपको घूर रहा है। हमना, उसकी तरफ मत देखो और अपना मुंह ध्यान चला करो, उसके सामने उसकी तरह की हरकतें मत किया करो, इस तरह की हरकतें मत किया करो। तीसरा दिन। हमना और मैं सीधा मुंह ध्यान चल कर घर आ गई। चौथा दिन। वीर, आ जाओ। बिल्ली और हमना। वी तो क्यों लेने आ गया? हम आ जाती। वो मैं इधर काम से आया था तो सोचा तुम दोनों को भी साथ ले जाऊं। अच्छा क्या वीरे? मगर वो ढीठ बनकर खड़ा रहा और उसे वीरे के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 माह बाद। हमना, ये क्यों यहाँ खड़ा होता है? बाजी बिल्ली, मुझे लगता है ये तुझसे शादी करना चाहता है। चुप कर, बिल्ली ने डांट कर कहा। बाजी बिल्ली, वो देखो तो कैसा देख रहा है। बिल्ली ने नज़र उठाकर उसे देखा और बोलो बिल्ली, फिर क्या हुआ था? डॉक्टर लीला बड़े प्यार से देखकर पूछ रही थी। आंसू थे जो तुमने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ हाँ, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। डॉक्टर रीला ने उसे रोने दिया, फिर वो आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और सबसे बड़ा गुनाह था। हमना मेरे साथ ही होती थी तो उसे सब इल्म था। वो मेरे पीछे आने लगा, मगर मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि मैं मलक जलाल की बेटी हूँ और किसी की ज़रूरत ना थी कि जो मुझे देख भी सकता। ये हाथ लगा कर तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता। मलक जलाल तुम्हारे वालिद हैं? जी। आंसू बहाकर गाल बको रहे थे और फिर से खामोशी हो गई। ओके तुम आराम करो, कल बात करेंगे। डॉक्टर दिला ये कहकर बाहर चली गई और अपने बेड की तरफ चल दी। बेबे वो उधम मचा रही थी। मुल्कानी जी मुझे बचाएं। कहा मुल्कानी जी कर मुँह जोर जोर से चला रही थी। खुदा खैर करे। सीमा दौड़ती हुई गई तो सामने का मंजर देखकर सख्त बुत बन गई। करमो नीचे ज़मीन पर पड़ी थी और बिल्ली उसके ऊपर चढ़कर उसको पीट रही थी।
सीमा ने जल्दी से आकर बिल्ली को उठाकर परे गिराया और गर्मों को उठाया। वो मार खा खा के बेसुध हो गई थी। ये क्या है बिल्ली? सीमा गुस्से से बोली। बेबे, इसकी जरूरत कैसे हुई मेरा नया सूट जलाने की? क्या हुआ कर्मो? मलकानी जी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। गलती से हो गया तो मैं तुझे बताती हूँ। बिल्ली उसकी तरफ लपकी। मलकानी जी बचाएं बिल्ली, बीबी मुझे मार देगी। पहले ही मार मार कर मेरा कुछ नहीं छोड़ा। इससे पहले कि बिल्ली उसे पकड़ती, सीमा ने बिल्ली को पकड़ लिया। बेबे छोड़ दे मुझे, आज ये जिंदा नहीं बचेगी। बीबी छोड़ दे वरना कर्मो चल जाके चाय चढ़ा दे, मलक जी आने वाले हैं। कर्मों ने ये सुनकर दौड़ लगाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्ली इंसान बनाकर वो भी इंसान है, इससे भी गलती हो सकती है, इस तरह मारते हैं? सीमा ने गुस्से से कहा। बेबे, गलती मेरी पसंद के जोड़े पर ही आकर होनी थी ना बेबे ना। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलना? तूने ही उसे बोला होगा कि मेरा जोड़ा जला दे ताकि मैं बानों की मंगनी में न जा सकूं। या तो इसे उठा ले या फिर मुझे उठा ले। सीमा ने कहा। क्यों? मुझे क्यों उठा ले? रब इनको उठाए जिन लोगों को ने मेरा जोड़ा जलाया और जिनके कहने पर जलाया है, इनको भी। तड़ाक जोता बिल्ली की कमर पर पड़ा। बेबे दफ़ा हो, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा दी है रब ने मुझे तेरी सूरत में। ये जो तू अब्बे पे दौड़े डालती थी ना बेबे, इसकी सज़ा मिली तुझे, बिल्ली ने बदतमीजी करते हुए कहा। मनहूस ज़ुबान बंद कर ये कहकर वो बाहर निकल गई। बिल्ली ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काश बेबे तू मुझे इसी वक्त मार देती जब मैं ये सब करती थी। मगर वो हल्का सा बड़बड़ाई और आंखें बंद कर ली। तकलीफ का एक लंबा दौरानिया शुरू हो चुका था और उसने अब उसे सहना था। रुकें रुकें प्लीज़, मेरी बात सुने, वो इसके पीछे आते हुए बोला। वो फिर अचानक उसके सामने आ गया। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हटें, बिल्ली चलाई। गुस्सा उसकी सुरख शक्ल से वाजिया था। आप मुझे गलत समझ रही हैं, वो जल्दी से बोला। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ मेरी जान। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उंगली उठाते उससे पूछा। जी जी जानता हूँ, मलक जलाल की बेटी हो। वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा था। उसे बिल्ली के गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। इसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत और जुर्रत? इंतहाई गुस्से से कहा गया था। फिर से वो मुस्कुराया। आप मेरी बात तो सुन लें, वो इंतहाई नरमी से कह रहा था। वो खबरदार, जो आप मुझे आवाज़ दी तो हटो, गुस्से से कहती वो आगे बढ़ गई। लेकिन वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। बिल्ली ने थोड़ा आगे जाकर पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछाली। ला हौल वला कुव्वता। बिल्ली झरझरी लेकर आगे बढ़ गई, लेकिन दिल में मीठी मीठी खुशी उसकी इस तरह किस करने की। और वो सारा दिन इसी के बारे में सोचती रही। ध्यान बार बार उसी की तरफ हो जाता तो वो मुस्कुरा कर रह जाती। अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो बिल्ली को वो मोहब्बत इस अजनबी से हो गई थी जिसका नाम भी उसे मालूम नहीं था। कुछ दिन गुजरे यूं ही गुजर रहे थे। वो उसे मुड़कर देखती, फ्लाइंग किस उछाल देता। बिल्ली का दिल खुश हो जाता लेकिन जाहिर नहीं होने देती। कुछ दिन बाद फिर आगे बिल्ली चलाकर बोली। जबकि दिल तो खुश हुआ उसे देखकर। वो 2 दिन बाद आया और बिल्ली को इन 2 दिनों में कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। हाँ, जब तक तुम मान नहीं जाती मैं आता रहूँगा। वो हनूस अपनी मुस्कुराहट कायम रखे हुए बोला। तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। बिल्ली गुस्सा जाहिर करते हुए बोली। शौक से, पर मुझे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। वो डठाई से बोला और एक आंख भी इनकी। लगता है वीर को जानते नहीं हो। बिल्ली उसकी इस हरकत पर टस्ट पाकर रह गई। उनको भी जानता हूँ लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो इसके करीब आते हुए बोला। बकवास बंद करो। बिल्ली थोड़ा पीछे हटी। है बकवास नहीं है नाजो। वो वीर से थोड़ा आगे बढ़ा और उसके गाल को उंगली से छुआ। नाजो बिल्ली को अपने नाम में ही उलझी हुई थी। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? हैरान होकर पूछा। मैं सब जानता हूँ नाजो। इसने अब लब उसके लबों पर रखे और ऐसे ही हल्की आवाज़ में बोला। मेरा यकीन करो। बिल्ली ने उसकी बात आधी सुनी करके दौड़ लगा दी, और क्योंकि उसका दिल इस हरकत पर इस जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह एहसास बहुत खूबसूरत था। मान जाओ ना। अगले दिन फिर से वो वहीं खड़ा वो उसे कह रहा था। क्या ये वाकई मुझसे प्यार करता है? बिल्ली ने दिल में सोचा। वो कमाल को नहीं बताएगी। शायद वो भी ये बात जानता था, क्योंकि अगर बताना होता तो वो अब तक बचा चुकी होती, क्योंकि इस दिल में कुछ न कुछ मोहब्बत के जज्बात तो वो जगा चुका था। अब ये बात वो भी मान गया था। देखो तुम जो भी हो, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, ना है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बिल्ली करा करते हुए बोली। वरना दिल तो कह रहा था कि उसे यूं ही देखती रही उम्र भर। जमुना के पेपर हो गया तो वो आजकल अकेली ही जाती थी। मैट्रिक के इम्तिहान थे तो वो छोटी बिहेव भी नहीं करती थी और अब उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी चलने लगी। मेरा नाम चौधरी वलावल है। वो ज़ोर से बोला। बिल्ली ने मुड़कर उसे देखा और चुपचाप स्कूल में दाखिल हो गई, क्योंकि ज़्यादा देर उसके सामने रुकती तो शायद जब्त जवाब दे जाता। कुछ दिन से बिल्ली उसे ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। दिल बेचैन था कि उसकी एक झलक देखने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा था। हमना वो अब नहीं आ रहा। बिल्ली ने हमना को सब बताया। बाजी, क्या वो अब वाकई नहीं आएगा? पता नहीं, पर मुझे उससे क्या
पता नहीं, पर मुझे इससे क्या। उसने लातल्लुक़ बनते हुए कहा, हाँ चलो अच्छा ही है कि वो ना आए। हमना ने कहा तो वो उसे बस देखे गई। नहीं हमना, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। उसने दिल में सोचा और खामोश हो गई। बाजी बिल्ली उठ जाओ, उठ जल्दी करो। हमना बाहर से आकर भागते हुए आई। हमना मत तंग करो, कल पेपर है मेरा। वो पढ़ने में मसरूफ़ थी। बाजी वो अपने घर के बाहर खड़ा है। हमना ने उसे बाहर ना जाता देख कर कहा, हमना जाओ। बिल्ली गुस्से से बोली। बाजी बिल्ली, वो स्कूल वाला लड़का। हमना की बात वो बिल्ली चौंकी। कौन? वो स्कूल के बाहर खड़ा रहता था जो। हमना ने वजाहत दी। क्या? बिल्ली चिल्लाई। आस्ता बोलो बाजी। हमना ने कहा, बिलावल। वो बोली, तुझे नाम कैसे पता चला बाजी? हमना ने तजस्सुस से कहा, उसी ने एक दिन चीख कर बताया था। अच्छा अच्छा, चलो ऊपर। बिल्ली ने जल्दी से किताबें बंद की और छत की तरफ बढ़ गई। वो दोनों दीवार से उसे देख रही थी। हाय मैं मर गई, ये तो वही है, बिल्ली ने परेशान होकर कहा। दिल उछल कर बाहर आने को तैयार था। अब क्या होगा बाजी बिल्ली? हमना ने पूछा। वो परेशान हो चुकी थी। मुझे क्या पता, बिल्ली ने डरते हुए कहा। चलो नीचे चलें, कोई देख ना ले। नीचे आकर भी इसका ध्यान बिलावर की तरफ ही रहा। वो उसे अच्छे से अच्छा लगने लगा था। ये बात सिर्फ वो जानती थी, हमना को नहीं बताया था। वो खुद को बहुत देर रोकती रही, लेकिन दिल इस आलम को देखने को दीवाना हो रहा था। फिर वो दिल की सुनती एक दफ़ा फिर से छत पर आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बिलावल ने फिर से उसे फ्लाइंग किस की। उसकी तरफ वो चले और मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। मतलब इसका काम हो गया। वो बहुत खुश था और बिल्ली भी। अब्बाजी मुझे शहर जाना है पढ़ने। ना पुत्र ना, ये नहीं हो सकता, मलिक जलाल ने कहा। अब्बाजी मैं पढ़ने आगे बढ़ना चाहती हूँ। बस पुत्र मैट्रिक पास है, तू बड़ा है, ये हमने कौन सा नौकरी करानी है। अब्बाजी पुत्र बस बस पुत्र, बात ख़त्म हो गई। वो मुंह बनाए कमरे में आ गई। उठ बिल्ली मेरी जान, रोटी खा ले। नहीं खानी है बेबे। पुत्र रोटी से क्या बैठ मेरा भला। बेबे तू अब्बे से बात कर ना, वो तेरी बात ज़रूर मानेंगे। बिल्ली अगर तेरे अब्बा जी ने मानना होता तो वो कभी मना नहीं करते। मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ। उनके इनकार का मतलब है कि इनकार। ये बात जितनी जल्दी हो समझ ले, इनको तंग ना कर। अब तेरे ना, तेरे अब्बा जी ने भी कुछ नहीं खाया, वो भी सारा दिन के भूखे हैं बेबे। उसने हैरानगी से माँ की तरफ देखते हुए कहा। बस पुत्र मैट्रिक कर लिया है, और बताओ और कोई है पूरे खानदान में जो मैट्रिक तक पढ़ी लिखी हो? तेरे अब्बा जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनको इम्तिहान में ना डाल। चल उठ जा तेरी मेरी शहजादी। बिल्ली माँ की बात सुनकर उठ गई और खाना लेकर मलक जलाल के कमरे में गई। हल्के से दरवाज़ा बजाया। आ जाओ पुत्र जी। बिल्ली पुत्र। अब्बा जी आपको कैसे पता? बिल्ली ने कहा। अब्बा जी खाना लेकर आई हूँ। मलक जलाल हल्का सा मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। ले आप पुत्र, बड़ी भूख लगी है। अभी तक तो आपको भूख नहीं लगी थी, और अब? सीमा ने मलक जलाल को छेड़ने के अंदाज में कहा। ओ भली लोग, मेरी बेटी ना खाए तो भला मुझे भूख कहाँ से लगेगी? वो बिल्ली को प्यार करते हुए बोले। जी जी मलक जी, जानती हूँ, मुझे सब समझ आ रही है। फिर वो मुस्कुरा दी। फिर वो तीनों खाना खाने लगे, क्योंकि खाना तो सीमा ने भी नहीं खाया था। हाल मलक जलाल उदास और परेशान बैठा था, जबकि कमाल अपना फैसला सुनाकर जा चुका था। आज शिद्दत से उसे सीमा की याद आ रही थी, मगर वो अब सोए उसे याद करने के कुछ नहीं कर सकता था। हमना और बिल्ली के यूं घर से चले जाने के बाद मिशाल और ईशा को वापस मलक बिलाल के पास छोड़ आया था। अब मुल्क में कमाल में मलक मुल्क से बाहर जाने का फैसला सुना दिया था। वो अब तन्हा रह गया था और दिल फिर से माजी की यादों में खो गया था। तब वो अबे हाँ पुत्र, मलक जी इसको समझाएं कि ये आपको अबे मत बोला करें, बल्कि तमीज़ से अब्बा जी बुलाया करें। ओ भली लोग, मेरी बेटी मेरी सहेली है, और दोस्त में तमीज़ नहीं होती। कैस क्यों बोले? आहो अबे, पर बेबे को क्या पता, इन्होंने तो कभी किसी को दोस्त बनाया ही नहीं। बिल्ली ने इतरा कर कहा। मलक जी इसको समझाएं कि मुझे इस तरह के बेढंगे मजाक मत किया करे। ओ भली लोग, जब ये ब्याह कर चली जाएंगी ना, तब उसकी यही बातें तुझे याद आया करेंगी। अब्बा जी मुझे नहीं शादी करना है आपसे। ओ पुत्र, बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। इतना कहकर मलक जलाल की आंखें नम हो गई और वहाँ से उठ गया। बेबे क्या है, तूने मेरे अब्बा को रुला दिया? पर ये क्या, यहाँ तो बेबे भी रो रही है। हाय बेबे, तू भी मेरे जाने से उदास हो गई। मुझे तो लगता है तू खुशियाँ मनाएगी। ये कहकर उसके माँ को गले लगा लिया और सीमा मुस्कुरा दी। बिल्ली, तूने शादी की भी नौबत नहीं आने दी, मलक जलाल ने सोचा, और फिर उसके चेहरे पर सख्ती के असरात नुमाया हुए। बिल्ली, अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर अदीला बड़े प्यार से देखकर पूछ रही थी। बेहतर हूँ अब, बिल्ली ने आहिस्ता से कहा। डॉक्टर जी बोले। आपको लोग कौन हैं? क्या मतलब? हम डॉक्टर हैं, ये अस्पताल है। इतने में एक लड़का अंदर दाखिल हुआ, जल्दी से बोला। मैडम, इस नाजो को फ़ौरन शिफ्ट करें। किधर लेकर जा रहे हैं आप लोग मुझे? मैं नहीं जाऊंगी। देखो नाजो, तुम्हारी जान को खतरा है, सब पता चल जाएगा तुम्हें। वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो जल्दी करो। बिल्ली के पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए चुपचाप इसलिए चुपचाप उनके साथ चल दिए। डॉक्टर
काउंटर पर तला दें, किसी को भी नाज़ों का पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद वो नाज़ों को लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी। डॉक्टर दिलान ने उसे गाड़ी में बिठाया और कुछ हदायत देकर वापस मुड़ गई। गाड़ी कुछ देर के बाद एक बंगले के बाहर रुकी। गार्ड ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी और उसे लेकर अंदर दाखिल हो गई। सामने एक मुलाजमत थी जो शायद ही उसी का इंतजार कर रही थी। आए बीबी जी, वो उसे लेकर एक कमरे में गई और बोली, बीबी आप आराम करें, मैं खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। रुको अम्मा, ये किसका घर है और मैं कहाँ हूँ? बीबी, ये डॉक्टर अदीला का घर है और आप इस वक्त डिफेंस में हैं। सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, फिर वो बाहर निकल गई। वीरे, तू सबसे अच्छा है। वो खुशी से झूल उठी थी। कमाल पुत्र, तू इसकी हर बात का मानकर अच्छा नहीं करता। ओ बेबे, इसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगा तो किसकी खुशियों का ख्याल रखूंगा? वीरे, अब तू बेबे की बातों में ना आ जाना। अच्छा अच्छा, अब जाओ, जाकर खोल के देख ले, ठीक है? अच्छा वीरे, ये कहकर वो तमाम किताबें लेकर कमरे की तरफ चल दी। कमाल उसके लिए इंटर की किताबें ले आया था और अब वो घर बैठकर आगे पढ़ेगी और पेपर दिलाने के लिए उसे शहर लेकर जाएगा। मलक जलाल ने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। ट्यूशन के लिए स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बात कर ली थी कमाल ने। अब बिल्ली शाम में पढ़ने के लिए मिस सादा के पास जाने लगी और हमना भी उसके साथ ही रहती थी। देखो बिलावल, मुझे इस बात से कोई तल्लुक नहीं, मेरे रास्ते में मत आना आज के बाद। मेरी रुको तो, मेरी बात तो सुनो ना। देखो बिलावल, मुझे आगे पढ़ना है और मैं इन चक्करों में पढ़कर सब खत्म नहीं करना चाहती। मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे इस बात से भी कोई सरोकार नहीं और हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? बिल्ली बिल्ली, वो इसके सामने आ गया। बिलावल, मैं बात खत्म कर चुकी हूँ। तुम ऐसे कैसे बात खत्म कर सकती हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मुझे किस हक से रोकोगे? बिल्ली ने पूछा। मोहब्बत, ये हक काफ़ी नहीं है क्या? नहीं, बिल्ली ने दो टोक अंदाज में कहा। मतलब क्या कहना चाहती हो? हमारी खानदानी दुश्मनी है और ये कभी मुमकिन नहीं कि हम एक हो सकें, तो इसका मतलब ही नहीं बनता। बिल्ली ने गुस्से से कहा। मेरे बाबा को कोई एतराज़ नहीं है, बिलावल ने आराम से कहा। बिल्ली ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब तुम्हारा बाबा? मतलब कि चौधरी सजावल अपनी पुरानी देरीना दुश्मनी भूलकर मुझे बहू बनाने के लिए तैयार है? उसने टोकने के अंदाज में कहा। बिल्कुल ऐसा ही है, उसने बाएतमाद लहजे में कहा। बिल्ली बहुत हैरान होकर उसे देखकर आगे बढ़ गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसने पीछे से आवाज़ दी तो वो खामोशी से बिना जवाब दिए गली मुड़ गई। बाजी बिल्ली, उठो। ये हमना थी। बोलो हमना, क्या बात है? मुझे डर लग रहा है, साथ लौटा लो। आओ इधर, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, उसने बहुत मारा है। आंसू निकल निकल कर आंखों में जलन हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो हमना। बिल्ली ने उसके साथ सामने हाथ जोड़े थे। नहीं बाजी, तुम्हारा भला क्या कसूर? हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था। बिल्ली ने उसे गले लगा लिया और रोतारो कतार रोने लगी। और वो तो प्यार मोहब्बत हो रहा है। वे बिलावल की आवाज़ थी जो तंजिया हंसी हंस रहा था। शैतान कमीने कुत्ते, खून पी लूंगी तुम्हारा। खुद बकवास बंद कर जलील औरत। तेरे बाप ने जो मेरे भाई जी के साथ किया तुम क्या समझी? मैं भूल गया हूँ? नहीं, कभी नहीं। ये कहकर उसने दो थप्पड़ बिल्ली के मुंह पर मारे और साथ गंदी गालियाँ बकता रहा। बिल्ली अचानक से उठ गई। क्या हुआ? सामने डॉक्टर अदीला थी। क्या आप मुझे सारी बात बताएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं खुद अब तुमसे ताउन चाहती हूँ और तुमसे दरख्वास्त चाहती हूँ कि मुझे सब सच बताओ। तो ठीक है, फिर आप अपने पहले अपना तारुफ करवाएं। बिल्ली अब पहले बेहतर लग रही थी। मैं वाकई डॉक्टर अदीला हूँ, ज़हनी अमराज की डॉक्टर। उसके साथ साथ मैं एक हद में रहते हुए एहसास अदारों की मदद भी करती हूँ। डॉक्टर हुमा भी इसमें शामिल है और जब हमारे पास कोई ऐसा मरीज़ आ जाए जो इस हालत में हो जिसमें तुम थी, तो हम उसकी मदद से इस गिरोह तक पहुंचाते हैं जो ये सब कुछ करवाते हैं। इसके साथ ही दो पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए और दिला के ने बड़े प्यार से बिल्ली को उनकी हर बात बताने की अपील की। ठीक है बिल्ली, हमारे पास हमना को बचाने के लिए बहुत कम वक्त है। तुम्हें वहाँ से फरार हुए आज 4 दिन हो चुके हैं और अब तक बहुत कुछ कर चुके होंगे। शायद हमना को गायब भी। डॉक्टर अदीला की बात सुनते ही बिल्ली के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। अगर हमना ना मिली तो मैं सब बताऊंगी, बिल्ली ने अपने नाम से कहा। शाबाश बिल्ली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये आवाज़ बार बार कानों में गूंज रही थी। ना जान चाहते हुए भी उसकी आवाज़ों पर छाया हुआ था। आखिर बिल्ली ने उससे मिलने का फैसला किया। रात 12 बजे के करीब वो घर से निकली तो खौफ के से कांप गई। का दिल चाहा वापस मुड़ जाए, मगर इश्क ज़ालिम हर खौफ पर गालिब आ गया। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती वहाँ पहुँच गई। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी, वो ये कहते ही बिल्ली के गले जा लगा और एक झटके से उसे पीछे करने के बाद एक थप्पड़ कर दिया उसके गाल पर। तुम्हारी ये जुर्रत! गुस्से से लाल हो गई थी वो साथ ही वापस जाने के लिए पलटी। ओह सॉरी सॉरी बिल्ली मेरी जान। वो दरअसल तुम्हें यूँ अपने सामने देखकर खुद को काबू में नहीं रख सका। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, समझे तुम? बिल्ली गुस्से में आगे कर। माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा। अब आ गई हो तो बैठो ना, उसने प्यार से कहा। तो बिल्ली जैसे सब भूल गई और उससे बातें करने लगी। वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और 2 घंटे उससे बातें करती रही। फिर अचानक उसे मलक जलाल का ख्याल आया तो वो जल्दी से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब जब मिलोगी
पता नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब कभी नहीं आऊँगी इस तरह। तुम अपने अब्बा अब्बा को भिजवाओ मेरे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्द, पर अभी कुछ दिन लग जाएंगे। मैं इतने जल्द तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं रह सकता, तो प्लीज़ अच्छा सोचूंगी, कहकर वो पलट गई। सब सो रहे थे, किसी को भी इसके जाने और वापस आने का इल्म नहीं हुआ, सिवाय हमना के। बेबे, मैंने ये जोड़ा नहीं पहनना बानो की शादी में। क्यों, क्या है इस जोड़े को? मुझे पसंद नहीं। हद है वैसे पसंद की। नहीं, हमना को पसंद है, इसे दे दे, हो तो पहन ही लेगी, तेरे जैसी नहीं है वो। सीमा ने तारीफ करते हुए कहा। अच्छा, वेरे से बोला बोला है मैंने, वो कल से शहर से शॉपिंग कराएगा मुझे। तेरा अब्बा क्या कम था जो अब ये भी सर चढ़ाएगा तुझे? बेबे, तू तो हर वक्त जलती रहती है, बस मुझसे फिटे मुंह तेरा। भला ना भला कभी माँ भी अपनी औलाद से जली कभी? बेबे, और तो किसी का पता नहीं, पर बिली, जा 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 जा, चली जा, मेरी नज़रों से दूर मर जाएगी तो कदर आएगी मेरी। क्यों कदर क्यों आएगी बेबे? दूसरी बेबे भी तो आ सकती है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दो और बेबे ले आ, ठंड पड़ जाए तेरे और तेरे अब्बे के कलेजे में मलक जला जाए। वो दोनों की बातें सुन रहा था, हंसते हुए कहा, वो भली लोग, मेरी क्या मजाल के मैं दूसरी शादी का सोचूं भी? अब मेरी बेटी सिद्ध कर रही है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ हाँ, करें करें, दो चौड़ कर चार कर लें। बेबे गुस्से करती बाहर निकल गई। वो दोनों हंस हंस के पागल हो रहे थे। आ भी जा बिली, बस बस वीरे, आ गई, जल्दी कर, फिर वापस में आना है। बेबे, अभी चले ना साथ। ना पुत्र ना मेरे में अब इतनी जान कहाँ, ये तो सारा शहर फिर आती है बंदे से। और सीमा ने बिल्ली की तरफ इशारा किया। हम ना है ना साथ, बस काफ़ी है, बिल्ली ने गुस्से से कहा। और सुन कमाल, पुत्र शाल मिशाल और ईशा के लिए भी कपड़े ले आई। सीमा ने की। हाँ हाँ बेबे, ये भी भला कोई कहने की बात है। अच्छा, अब खैरियत से जाओ, जल्दी वापस आना। अच्छा, कहकर वो चल दिए। बाजी, बिल्ली वो देखो, हमना ने इशारा करते हुए कहा। तो बिल्ली ने मुड़कर देखा। बिलावल उनके पीछे था। हमना, ये क्यों यहाँ आया है? मुझे क्या पता बाजी, जाकर पूछ लो, पागल हो गया है वीरे का, पता नहीं है क्या उसे तुझे? बिल्ली, इधर आ, ये जोड़ा देख। कमाल ने बिल्ली को लाल पीले रंग में जोड़ा दिखाया। वाह वीरे, ये तो बहुत सुंदर है, ये इसे दे देना मेरी तरफ से, कमाल ने कहा। वीरे, बिल्ली ने दुखी होकर कहा। अब क्या फ़ायदा वीरे, चल छोड़ इस बात को, मेरे लिए भी जोड़ा पसंद करो ना। बिल्ली ने बात बदली। कमाल बानों को पसंद करता था, लेकिन मगर इसके कुछ कहने से पहले ही उसकी मंगनी उसके ताया के घर हो गई थी और बात चलने से पहले ही ख़त्म हो गई। शॉपिंग करते हुए सारा वक़्त वो इसके पीछे ही रहा। कमाल ने उसे देखा नहीं, वरना वहीं पकड़ लेता उसे। शॉपिंग के बाद कमाल उन्हें खाना खिलाने के लिए होटल ले गया। वहाँ भी उनके पीछे ही था। जब कमाल ने अपने गार्ड को बुलाया और उनके कान में कुछ कहा, बिल्ली की तो जान ही निकल गई। पर थोड़ी देर कुछ नहीं हुआ तो उसे हौसला हुआ। बानो की शादी में बहुत मसरूफ़ हो गई थी वो। इन दिनों उसे बिलावल से मुलाकात का भी मौका नहीं मिला। शायद वो खुद भी इससे मिलना नहीं चाहती, लेकिन बानो की बारात जब आई तो कोई तेज़ी के साथ दूसरी तरफ बढ़ गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्यों हुआ है। अपना दुपट्टा संभाल कर जब उसने देखा तो वो बिलावल था। तुम ऐसा बोलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्ली ने हड़बड़ा कर पूछा। तुम्हें देखने आया हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। बिल्ली तारीफ सुनकर शर्मा गई। थोड़ा सा प्यार करने दो। मतलब, बिल्ली ने खुफकी से कहा। मतलब प्यार? मैं नहीं, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे रही। अब जाओ, जाकर कोई देख लेगा। नहीं, ऐसे में मैं नहीं जाऊँगा। फिर कैसे जाओगे? अब्बा जी को बुलाऊँ तब जाओगे? तभी होले से उसने अपने होंठ बिल्ली की गाल पर रख दिए और बोला, ऐसे चला जाऊँगा। फिर एक लम्हे में वो गायब हो गया। पागल बिल्ली मुँह में बड़बड़ाती हुई बानों की तरफ चल दी। ये देख बगैरत बिलावल ने बिल्ली के बालों को जोर से खींचते हुए कहा। बिल्ली ने जब देखा तो उसके होश उड़ गया। उसके मोबाइल में वो तमाम तस्वीरें थी जब वो बिल्ली से मिलता था। तुम भी अपने भाई की तरह गंदा खून हो, बिल्ली ने चीख कर कहा। चटाक से थप्पड़ बिल्ली के मुंह पर मारा था और फिर उसने उसका दुपट्टा उठाकर दूर फेंक दिया। मत करो ऐसा बिलावल, तुम्हें खुदा का वास्ता है। वो जोर जोर से रो रही थी, मगर वो रुका नहीं और उसने बिल्ली की इज्जत पर मार कर दी। वो रोती रही, हाथ जोड़ती रही, मगर वो नहीं रुका। फिर डॉक्टर दिला ने कहा। इतना कहकर वो चुप हो गई और ज़रा कुछ रोते हुए बोली। और वो हमना को मेरे सामने फुट कर रो पड़ी। मैं इसकी मिन्नतें की और ये भी कहा कि जो करना है मेरे साथ कर ले, हमना को छोड़ दे। मगर उसने मेरे सामने डॉक्टर मेरी बहन की इज्जत आतर कर दी। वो इतनी छोटी बच्ची इतनी तकलीफ सह नहीं पाई और बेहोश हो गई, मगर वो बाज नहीं आई। रोते रोते ज़मीन पर गिर गई। पानी पीने के बाद वो फिर से बोली। इतना ही नहीं डॉक्टर, फिर मैं उसने हमारी इज्जत अपने नौकरों से पामाल करवाई। वो सामने बैठ कर तमाशा देखता और साथ साथ हमें कोड़े मारता। जो सज़ा मेरे अब्बा जी ने उसके भाई को सुनाई थी, वही सज़ा वो मुझे और हमना को रोज़ देता और बार बार देता। उसका बाप खुशी से जूता और वो कह लगाते और हमें कोड़े मारते। फिर इतना कहकर वो खामोश हो गई। डॉक्टर दिला का हौसला नहीं पड़ रहा था कि वो इससे आगे की कहानी सुनती। वो भी रो पड़ी थी। बिलावल, तुम चौधरी सजावल के बेटे हो ना? हाँ बिल्ली मेरी जान, पहले नहीं बताया था क्या?
بتایا تھا پر کیا کچھ نہیں۔ بلی بولی میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں بلی، پر تم فکر نہ کرو، میں اپنے پاپا کو منا لوں گا، مگر میرے ابا جی کبھی نہیں مانیں گے، کچھ تو کرنا پڑے گا اب۔ نہیں کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، کیا تم مجھے اتنی آسانی سے بھول جاؤ گی؟ مشکل ہے بلاول، مگر ہماری شادی ہونا بھی ممکن نہیں، دشمن ہیں ہم لوگ آپس میں۔ ہاں تو میں اور تم تو دشمن نہیں، ہم تو پیار کرتے ہیں نا۔ یہ کہہ کر اس نے بلی کو باہوں میں بھر لیا۔ ہاں بہت پیار کرتے ہیں، مگر ہمارا ایک ہونا ناممکن ہے بلاول، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ بلاول نے اسے کہا نہیں میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ بلی نے فوراً سے جواب دیا کیوں، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ بلاول نے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے کہا کرتی ہوں پیار، مگر میں اپنے ابا جی کی عزت کو یوں روند کر نہیں جا سکتی۔ ہم شادی کے بعد واپس آ جائیں گے اور ان سب کو بتا دیں گے، مار ڈالیں گے ہمیں۔ بلی نے پریشان ہو کے کہا ارے کچھ نہیں ہوگا، وہ معاف کر دیں گے تمہیں بعد میں، بہت پیار کرتے ہیں تم سے وہ۔ بلاول نے دلاسا دیا ہاں پیار تو کرتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تم اپنے ابا کو ہمارے گھر لے آؤ رشتہ مانگنے کے لیے۔ اس نے جھٹ سے تجویز دی کہ نہیں وہ رشتہ مانگنے نہیں آئیں گے، پر تمہیں میری خاطر اپنی بہو ضرور تسلیم کر لیں گے۔ بلاول نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا بلاول ہوں، اچھا تم سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ بلاول نے کہا اور پیار سے اس کے گال کو چوما، پھر وہ اسے گلے ملنے کے بعد واپس مڑ گئی۔ ہو گیا جی چودھری جی، شاباش۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ وہ یہ سب کیمرے میں محفوظ کر رہا تھا۔ بلی اس بات سے نجات تھی۔ ملک جلال سیما کو یاد کر آ رہا تھا کہ جب اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بلی کو معاف کرنے کا کہا تھا۔ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ مر گئی ہے ہمارے لیے، اور اگر آج کے بعد میں نے اس کا نام تمہاری زبان سے سنا تو زبان کاٹ دوں گا۔ ملک جلال غصے سے دھا رہا تھا۔ بلی کے جانے کے بعد سیما بیمار ہو کر چارپائی سے جا لگی اور ہر روز روتی رہتی، بلی کو یاد کرتی رہتی۔ بہت دفعہ بلی کے لیے معافیاں مانگی، مگر ملک جلال نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ پھر ایک دن بہت روئی، بہت تڑپی اور سارا دن ملک جلال کے پاؤں میں گرتی رہی کہ اسے ایک دفعہ بلی سے ملوا دے، آخری دفعہ ملوا دے، پر وہ نہیں مانا۔ پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ سیما کے منہ پر مارا اور نہایت غصے میں بولا آئندہ اگر اس نے بلی کا نام لیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ رات کو سوئی تھی پر صبح اٹھی نہیں اور خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ گھر اجڑ گیا۔ ملک جلال 3 بیٹیاں بلال کو دے آیا اور ہمنا اور بلی کے جانے کا بھی بتا دیا۔ مجھے معاف کر دینا بلال، میں تیری بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بلال کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ بھائی جی میں تو پہلے ہی کہتا تھا بیٹیوں کو زیادہ سر نہ چڑھایا جائے، پر آپ تو مانے ہی نہیں تھے۔ تو سچا تھا ملک بلال اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں اور واپس مڑ گیا۔ آج بلی بہت یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ ملک جلال نے سوچا اگلے ہی لمحے وہ تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس نے کار سے تھوک پھینکا اور کہا جہنم میں جائے، لیکن دل کی بے چینی اسے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ نہیں باجی نہیں، تم گھر سے بھاگ کر شادی مت کرنا، ہمنا بلی کو سمجھا رہی تھی۔ ہاں ہمنا میں کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، تم آج ہی جا کر اسے منع کر دو۔ اب تو بانو کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو پھر کیسے جاؤ گی؟ بلی نے پریشان ہو کر کہا باجی میں بیبے سے بولوں گی، مجھے اور آپ کو میری سہیلی کے گھر جانا ہے، پھر اجازت مل جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، بلی نے کچھ سوچ کر کہا بیبے۔ ہمنا نے کہا ہوں بول۔ سیما نے مصروف انداز میں وہ مجھے اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے۔ کیوں بیبے اس کی سالگرہ ہے؟ ہمنا نے ڈرتے ڈرتے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیبے، جانے دو نا۔ کہا نا نہیں تو نہیں، اکیلے شام کو باہر نہیں جانا۔ اچھا بیبے باہر بلی باجی بلی کے ساتھ چلی جاؤں؟ کیوں وہ کیوں جائے گی تیری سہیلی کے گھر؟ میں بولوں گی تو چلی جائے گی میرے ساتھ۔ اچھا چل پوچھ لے اس سے پہلے جا کر۔ اچھا بیبے، ہمنا نے خوش ہو کر کہا باجی بلی بیبے نے اجازت دے دی ہے؟ سچ؟ ہاں چل ہمنا، آج میں اس سے سارے تعلق ختم کر دوں گی، میں اپنے ابے کی عزت پامال نہیں کر سکتی۔ شاباش باجی، ہم اپنے ابے کی اچھی بیٹیاں ہیں۔ ہمنا شام کو وہ دونوں سالگرہ کا کہہ کر گھر سے گئیں اور وہ لوٹ کر نہیں آئیں۔ نہیں بلاول میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہمنا دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد ہمارا تعلق ختم، یہ کہہ کر وہ واپس مڑی جب بلاول نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور بولا ایسا کیسے سب ختم، ابھی تو تجھے بہت حساب کتاب دینے ہیں۔ بلی اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تجھے کیا لگا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں؟ لعنت مجھ پہ، اگر میں اپنے بھائی کے قاتل کی بیٹی سے عشق کروں؟ یہ تو ایک کھیل تھا اور تم اس کا ایک مہرا۔ بلی حیران پریشان کی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے جلدی سے بھاگنا چاہا مگر اس نے پکڑ لیا۔ ہمنا بھاگ جا، وہ چیخی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی انہوں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر وہ انہیں پکڑ کر ڈیرے پر لے آئے اور ظلم کی ایک داستان رقم کر دی۔ سیما کا رو رو کر برا حال تھا۔ کمال اور ملک جلال اور ان کے بندے انہیں ہر جگہ تلاش کر رہے تھے مگر ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پوری رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح کے وقت گامے نے چودھری سجاول کے آنے کی خبر دی۔ بلاؤ اسے سلام ملک جی، سنا ہے آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، ساتھ چاچے کی بیٹی کو بھی لے گئی ہے۔ چودھری سجاول نے طرز کرتے ہوئے کہا۔ زبان سنبھال کر چودھری ملک جلال رعبدار آواز میں بولا میری بیٹی گم ہو گئی ہے، جلد تلاش کر لیں گے ہم۔ آہا گم؟ وہ مگر وہ کوئی بچی نہیں جو گم ہو جائے، لے یہ ویڈیو دیکھ۔ چودھری سجاول نے موبائل ملک جلال کی طرف بڑھایا۔ ملک جلال کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ دھڑام سے وہ آسمان سے زمین پر گرا، اس کے دشمن اس کے پرخچے اڑا کر لے گئے تھے۔ وہ بے بس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ چودھری سجاول میں تجھے جان سے مار دوں گا، وہ دھاڑا تھا
उठकर और निकल इधर से। अगर मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। चौधरी से जब मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। उसके बाद मलक जलाल ने इन दोनों की कोई खबर नहीं ली। सीमा बिल्ली के गम में मर गई, पर अब वो कमाल भी मलक छोड़कर जा रहा था, मगर वो उसे ही बुत बना हुआ था। वो दिनों तक वो हमारे साथ यही सब करते रहे, और फिर एक दिन शहर लाकर एक औरत के हवाले कर दिया। वो भी इन्हीं के जैसी थी। वो जिस्म फरोशी करवाती और साथ जुल्म भी करती। हमें गरम गरम इस्त्री से दावे दी, गंदी गालियाँ देती और साथ साथ हमें ये बताती कि ये अंजाम होता है घर से भागती हुई लड़कियों का, इसीलिए तो ये भागती है अपने माँ बाप का महफूज घर छोड़ कर के। इनके जिस्मों को हवस लग चुकी होती है गैर मर्दों के छूने की। अब रोज़ नए नए ग्राहक हमारे जिस्म नोचेंगे तो तुम लोगों को वो माँ बाप याद आएंगे। हमना बहुत छोटी थी तो वो उसे बहुत ज़्यादा मारती थी, लेकिन वो ये सब सह नहीं पाई थी और अक्सर बेहोश हो जाती। लेकिन इन ज़ालिमों को भी फिर भी उस पर रहम नहीं आता था, और मेरा तो ये अंजाम होना ही था, क्योंकि जो धोखा मैंने अपने माँ बाप को दिया था, ये सज़ा तो हमें बहुत कम थी। इसके बाद मैं इसकी गुनहगार हूँ। डॉक्टर वो रोने लगी थी फुट फुट कर। मेरी वजह से इन लोगों में फंस गई मैं। दिन ना जाती उसे साथ लेकर तो ये सब नहीं होता। उसके साथ मैंने ये कर दिया डॉक्टर। मैंने क्या कर दिया? मैंने कैसे रात चलने पर यकीन कर लिया? कैसे? वो दोनों हाथों को मुंह पर रखे रो रही थी इज़ारो कतार। डॉक्टर, इसने थोड़ी देर बाद कहा। जी, मुझे तो मेरे बाप के इंसाफ की सज़ा मिली, पर हमना को उसके बाप के किए जुल्म वहाँ ले गए। हमना को क्या बिली? बोलो, मुझे बताओ कौन सा जुल्म? एक दिन हम दोनों कमरे में कैद थे और बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। सुराख से भाग कर देखा तो वो चाचा था। कौन चाचा? बिलावल। बिलावल। डॉक्टर अदिला ने पूछा। जी डॉक्टर, हमना का बाप। हमना ने उसे बुलाना चाहा, मगर वो खामोश हो गई। फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ हमना? इसने बाहर झाँका तो बोला, आपका बाप किसी लड़की को बेचने आया था। वो बहुत रोई और बोली, बाजी मेरी गुनहगार तन नहीं हो ये शख्स है, तुम नहीं हो, ये शख्स है। किसी की बदवा मुझे यहाँ खींच कर ले आया। और फिर उसके बाद वो खामोश हो गई, बिल्कुल खामोश। हम जल्द ही उसे निकालेंगे बिल्ली। डॉक्टर, इस रात भी वो मुझे किसी के घर छोड़ के आए थे। वो अकेला था। कभी मौका मिलते ही मैंने उसे ग्लास तोड़ कर मारा तो वो जख्मी हो गया, और ये शायद बेहोशी, और मुझे निकलने का रास्ता मिल गया। मगर हमना, फिक्र ना करो, अपने चाचा का एड्रेस जानती हो नहीं? घर का पता बताओ। बिल्ली ने घर का पता बता दिया। पलक जला दाने मार मार कर रो रहा था कि काश वो नूरी की तरह अपनी बेटी के साथ भी इंसाफ कर पाता। ये सच था कि बिल्ली बिलावल को मिलने गई थी 2-4 दफ़ा, मगर वो इसकी साजिश थी ये कि जिसका वो शिकार हो गई। पलक जलाल ने बिलाल का एड्रेस बता दिया था, जबकि चौधरी सजावल से वो खुद निपटना चाहता था। मैं कैसे अपनी बेटी का सामना करूँगा, वो उसकी माँ को आखिर में क्या मुंह दिखाऊंगा? ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया? काश एक दफ़ा उसके बारे में जानने की कोशिश तो करता। काश वो धारे मार मार कर रो रहा था। गोलियों की बौछार कर दी गई थी, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। सब कुछ तो ये कमीना घटिया लोग उससे छीन चुके थे। अब उसे सिर्फ बदला लेना था, और चौधरी को गैरत का निशाना बनाना था, इबरत का निशाना बनाना था। इसने अपनी बेटी के साथ किए एक एक जुल्म का हिसाब लेना था उसने। और मिनटों में चौधरी सजावल के सारे बंदे मार दिए थे, और चौधरी सजावल और उसका शैतान बेटा चारपाई पर बांध कर माफिया मांग रहे थे। वो अपने हर गुनाह का इतराफ़ कर चुके थे, और अब माफिया मांग रहे थे। नहीं चौधरी सजावल, जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, इसके बाद माफ़ी नामुमकिन। फिर मलक सजावल ने माचिस जलाई और चारपाई की तरफ करा दी। चौधरी सजावल और उसके बेटे की चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद पूरा गांव जमा हो गया, मगर कोई भी आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। चौधरी सजावल अपनी पूरी हवेली के साथ जल कर राख हो गया था, और उसके डेरे से 4 गाँवों की लड़कियां बाजियाब करवाई गई थी। शहर हसास अदारों के छापे में मलक बिलावल पकड़ा गया था, और साथ उसकी दूसरी बीवी भी। 40 रोज़ के रिमांड में वो सब उगल गया था। उसकी निशानदेही पर ही उस पर छापा मारा गया था, और बेशुमार लड़कियां बाजियाब करवाई गई थी, जिसमें हमना भी शामिल थी। मलक जलाल के कानों में सीमा के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे कि मलक जी, ज़िंदगी में अगर कभी बिल्ली आपको मिले तो उसे बता देना कि उसकी माँ उससे नाराज़ नहीं थी, बस उसे उसकी जुदाई के गम ने मार दिया था। वो घर से ना भागती, ना अपनी बेबे को बताती, तो वो इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ती। उसे बताना मलक जी, उसकी माँ ने उसे माफ़ किया। 2 आंसू बह निकले थे, और फिर बाजी मलक जलाल ने नज़र उठाकर बिल्ली की तरफ देखा। 2 बरस के बाद वो आज उसे देख रहा था। बहुत थकी थकी और कमज़ोर लग रही थी, आंखों में शिकवे थे। मलक जलाल का दिल किया कि वो उसे पहले की तरह ओ बेबे कहकर पुकारे, मगर वो तो किसी अजनबी की तरह खड़ी थी। मगर फिर जब्त का बदन टूट गया। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे बहुत देर तक रोते थे। मलक जलाल ने बिल्ली के आगे हाथ बांध लिए थे कि वो उसे माफ़ कर दे। काश उसने नूरी की तरह उसकी भी छानबीन की होती तो वो आज इस हाल में ना होती। बिल्ली ने बाप के पाँव में गिरकर माफिया मांगी थी, सजा तो पहले ही वो काट चुकी थी।
گھر سے باہر کر نہیں گئی تھی۔ ابا جی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بس اس کی اس ظالم کی باتوں میں آ گئی تھی، اور بس چپ پتر، جانتا ہوں سب۔ ڈاکٹر رانی صاحبہ نے سب بتا دیا۔ ماں کی موت کا سن کر بلی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں ماں کے کمرے میں بیٹھی روتی۔ حمزہ نے بھی ملک جلال سے معافی مانگی تھی اور اس نے معاف کر دیا تھا۔ فقط پر لگا کر اڑ گیا۔ بلی بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ ملک جلال نے بچیوں کا اسکول اور کالج بھی منظور کروا لیا تھا۔ ہسپتال بھی زیر تعمیر تھا اور جمال اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس گاؤں آ گیا تھا۔ ہسپتال جوائن کر لیا تھا۔ جمال ملک جلال کے دوست کا بیٹا تھا اور انہوں نے ملک سے تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن کے آیا تھا۔ ہمنا اسکول جانے لگی تھی اور ملک جلال بچیوں کو واپس لے آیا تھا۔ اب ساتھ بلاول کا بیٹا بھی تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، بس بلی کے لیے ملک جلال ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ کبھی ڈاکٹر جمال کا رشتہ آیا تھا جو کہ نعمت سے کم نہیں تھا۔ بلی کسی صورت نہیں مان رہی تھی، مگر جب جلال نے اسے کہا کہ اسے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں اور وہ اسے کبھی بھی اس کا ماضی یاد نہیں کرائے گا، لیکن کوئی بھی مرد اتنا عظیم نہیں ہوتا۔ بلی نے جمال کی طرف دیکھ کر کہا، میں آپ پر کیسے اعتبار کر لوں؟ وہ رکی سی بولی، ہر مرد اس گھٹیا کی طرح بھی نہیں ہوتا۔ نازو میری اعتبار کرو۔ آج نہ جانے کیوں بلی کو اس شخص کی باتوں پر یقین ہوا چلا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا جیسے اس کے ہونٹوں کو لگانا چاہا تو بلی نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آج ابھی میرے محرم نہیں ہے۔ جمال ہلکا سا مسکرایا۔ جلد ہی سادگی سے اس کی شادی ہو گئی، زندگی پرسکون ہو گئی اور واقعی اس نے کبھی بلی کو اس کا ماضی یاد نہیں کرایا تھا۔ حمزہ اور تیز گھوڑے اور تیز بلی اور جمال کا بیٹا۔ ملک جلال اسے کندھوں پر بٹھا کر گھما رہے تھے جبکہ بلی اور جمال کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حویلی میں رونق لوٹ آئی، لیکن لوگوں کے ذہن میں آج بھی وہ سب ویسے ہی محفوظ تھا جیسے پہلے دن ختم شد۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا کر کسی اجنبی سے ملنے جاتی ہیں۔ خدا دارا سنبھالیں خود کو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ کو آپ کے بھائی اور باپ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں، ضروری نہیں آپ کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر عدیلہ ہو، کوئی ڈاکٹر جمال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بچی کی عزت محفوظ کرے، فرمائے آمین۔ اپنا